ثابت کر لیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملی مسلم لیگ 2017 میں لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ سعید نے سیاسی فرنٹ کے طور پر بنائی، اور یہ بھی کہ ملی مسلم لیگ کی قیادت لشکر کے رہنمائی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ملی مسلم لیگ کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن کا معاملہ پاکستان میں بھی اب تک رکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس جماعت کی رجسٹریشن کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ رجسٹریشن کے لیے MML کو وزارت داخلہ سے کلیئرنس لینی ہوگی۔ جو ہے یہ پاکستان کے وقت کے مطابق کل رات کوئی 1 اور 2 کے درمیان ہوا، مجھے ایگزیکٹ ٹائم اب یاد نہیں ہے، سونے سے قبل میں نے دیکھا تھا، ہاں لیٹ تھا، کیونکہ میں اس وقت سوتا ہوں تو اس لیے میں اندازے سے کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں لطیفہ یہ ہے کہ یہ اعلان عین اس دن ہوتا ہے جب ایک انتہائی کامیاب دورہ کرنے کے بعد امریکہ کی ایلس ویلز جو ہیں وہ پاکستان سے رخصت ہو جاتی ہے۔ کامیابی کس مطلب میجر سے یہی ہوتا ہے نا، کامیاب دورہ اور ایک دوسرے کو سراہا اور وغیرہ وغیرہ، اگر آپ آفیشیل۔ اچھا، اوکے، رائٹ۔ اب یہاں سے وہ کہاں جاتی ہیں؟ میرے خیال میں بھارت، جی دلی گئی ہیں اور وہاں وہ 3 روز رہیں گی۔ ٹھیک، اوکے۔ اب ہم نے اس سے کنیکٹ کر کے دیکھنا تھا، ضروری ہے کہ اس سے کنیکٹ کر کے دیکھا جائے، کیونکہ ایلس ویلز جو ہیں اس دفعہ غیر معمولی ایک حوالے سے ان کا طویل دورہ تھا۔ ہاں یس، ورنہ تو ہوتا ہے ایک دن میں آتا ہے۔ ایبسولوٹلی، وہ یہاں تھی بلکہ 2-3 دن نہیں، بی بی وہ بدھ کی رات کو پہنچی، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور کل کسی وقت وہ روانہ ہوئی۔ اچھا، نہیں، آلموسٹ ویک۔ سو ہم کم از کم 5 دن تو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، ٹھیک کہہ رہے۔ اچھا، اب ان سے پہلے ان کا جو ٹائٹل تھا عہدے کا وہ یہ تھا کہ وہ خصوصی سفیر تھی، ایف پیک۔ ٹرمپ انتظامیہ کو اس سے چڑ ہے، انہوں نے ختم کر دیا۔ اب انہوں نے بیورو ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشین افیئرز بنا رکھا۔ ٹھیک ہے، اس کی وہ اب اس میں عام طور پر انڈر سیکرٹری کہا جاتا ہے، ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر US ایمبیسی کی پریس ریلیز کے مطابق ان کو کہا گیا سینئر بیورو آفیشل۔ ٹھیک، ٹھیک، رائٹ۔ اچھا، اب ثابت ہوا کہ وہ جو آئی تھیں تو اس دفعہ ان کے آنے کا مقصد جو تھا وہ صرف افغانستان اور پاکستان وہ فوکس نہیں تھے، بلکہ پاکستان بھی تھا، بلکہ پاکستان بھی تھا، اور اس حوالے سے وہ کراچی بھی گئی، سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ملاقات کی۔ جیسے ہی وہ یہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ آ جاتا ہے، تو پھر یہ آ جاتا ہے۔ اسی میں ہی وہ 3 کو گئیں، 3 ہی کو آ گئی۔ اب اس کی زبان بھی جو ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لشکر طیبہ والے بھیس بدل بدل کر مختلف ناموں سے آتے ہیں، لیکن نہیں، ہاں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ چلیں ٹھیک، لیکن اسی میں جو یہ آیا ہے، ہم بار بار یہ تو کر رہے ہیں ملی مسلم لیگ ٹا ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ پھر سرکاری طور پر امریکہ نے اپنی دستاویز کے ذریعے US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ڈپلومیسی ان ایکشن، اس میں یہ کہا ہے کہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نومبر 2008 میں جو بامبے میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اس کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور اس حملے کے بارے میں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ اس میں 166 لوگ تو مرے تھے، لیکن 6 ان میں امریکی بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اور ایک امریکی تو آپ کو پتا ہے 1000 انسانوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، غالباً زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ کہ کیٹیگوریکلی آپ مبینہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ allegedly، ٹھیک ہے، اوکے، مطلب دیر ایکسپٹیبل یہ بات تو ہے، فائن، یا وی سسپیکٹ، ہمیں شبہ ہے، یا ہمارے پاس ٹھوس شواہد ہیں، انڈیکیشن ہیں، اشارے ہیں کہ وہ جو حملہ ہوا تھا نہیں، اسٹیٹ زبان ہے کہ was responsible
was responsible, ठीक, कोई if but नहीं है, for the November 2008 terrorist attacks in Bombay that killed 166 people, Including 6 Americans. including Yeah. 6 Americans. ओके, ठीक, चलिए, अब ये उन्होंने कर दिया। सवाल ये उठता है, आपने अब आ जाए आगे, तो ये तो उन्होंने कर दिया, इस पे आप इसका बैकग्राउंड रखिए। जो बोल पाकिस्तान में सबसे पहले मुझ बदनसीब ने दुहाई मचाई थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मैं दीवानों की तरह मैं चीखता रहा। मैंने कहा भाई ये देखो, पता करो क्या हो रहा है भाई। चलें, ब्रेक की उसने कहा कि आप भी पता करें, ब्रेक ले। चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की इन्होंने जो बताया है, इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, उसके बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा भाई, हमारे यहाँ एक तो मसला ये होता है, यहाँ पर एक साहब मैं अभी देख रहा था, मैं नहीं जानता कौन है, सैयद कमाल हुसैन शाह, पता नहीं क्या नाम था, ट्विटर पे अपने आप को सूफीज्म का प्रचारक कहते हैं, और वो PFUJ ये सहाफियों की यूनियन के भी को बहुत बड़े, मैं चूंकि सहाफी नहीं रहा, ना कभी यूनियन का पता है, तो मैं उनको पहचानने से भी नया सहाफत में आया हूँ, शायद मिलूंगा, को प्रेस क्लब वगैरह जाऊं कभी तो पता चल जाएगा कि कौन है। नहीं तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि दुनिया में ये कैसे होता है कि कोई शख्स लोगों की कही बातें एक्सप्लेन करता है, यानी दुश्मन की जबान क्यों बताता है। मतलब कि अगर ये छपा हुआ है, मैं अपने लोगों को कहूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं ये बताओ ही नहीं है, क्या कहें, नहीं तो क्या करें, ये बताओ ही ना, ये वही तरीका है ना जिसकी वजह से ये कि उसामा की थी एबटाबाद। हाँ तो जब ले गए उसको, अब तक हम यही कह रहे हैं कि किधर रिपोर्ट अभी तक छापने की जरूरत नहीं होती, जो आपकी अपनी बनाई हुई है। इसके इम्प्लीकेशन होंगे ना, इसलिए आप कह रहे हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कह रहे। भाई मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया में कहीं बताओ, अगर फर्ज करो, क्या आप समझती हो ये बॉम्बे जाए, वहां के चीफ मिनिस्टर से मिले, तो ये कहेगी, वेलकम कर चुके ना वो, ये कहेगी कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज विद द पीपल ऑफ बॉम्बे एंड महाराष्ट्र, गिव मी अ ब्रेक। गलत बात है ये लोग जो आपके साथ जो होते हैं, आप समझ नहीं रहे होते, समंदरी से कॉल लेने फिर आगे बात ही करनी बड़ी आम। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। जी समुद्री से बोल रहा हूँ, शफीकुर रहमान। जी शफीक साहब। सर ये जो मुस्लिम लीग, मिली मुस्लिम लीग पे पाबंदी लगी है, जी जी, ये वाकई इस पे अमल दरामद होगा कि जो हमेशा आप लिखते रहते हैं कभी कभार कालमों में कि गुड और बैड की तमीज से जब तक हम नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हमारे मसाइल नहीं खत्म होंगे, तो ये कहीं उस सियासत की नजर तो नहीं हो जाएगा? सबसे पहली बात ये है भैया कि ये पाबंदी का ऐलान अमेरिका ने किया है। जी सर। ये पाकिस्तान ने तो नहीं किया ना। जी जी। इलेक्शन कमीशन में एतराजात हुए, इलेक्शन कमीशन ने अब वजारत दाखिला को कहा है कि आप बताइए इनके बारे में, और वजारत दाखिला क्या बताएगी? कुछ रोज पहले क्या पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में बरमला ये नहीं कहा कि उनके पास हकीम सईद साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं है? जी सर। तो अगर एक वजीर आजम बरमला ये बात कह चुके हैं, तो उनके अंडर काम करने वाली वजारत दाखिला जो है वो ये तो नहीं कह सकती कि जी वजीर आजम ने झूठ बोला था। तो यकीनन नहीं है कुछ ऐसी बात हुकूमत पाकिस्तान के पास, और हुकूमत पाकिस्तान की अभी तक यही पोजीशन है कि साहब आप हमें शबाहत दीजिए। उसके अलावा इनका आर्गूमेंट ये भी है कि बहुत अरसा पहले जब अमेरिका की वजीर खारिजा होती थी गालिबन हिलरी क्लिंटन साहिबा, तो उनके दौर में एक अवार्ड अनाउंस हुआ था ना कि जो एविडेंस मुहैया करेगा। तो भाई अगर उस वक्त इतना पुराना अवार्ड भी
रिवॉर्ड भी ऐलान हुआ था, तो उसके बाद क्या लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन अप्रोच करके कुछ साहब जब उन्होंने किया था तो इलेक्शन कमीशन को पहले अप्रोच किया था, तो याद नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पहले एक एडवाइस भेजी थी कि ये इनको आप ना करें, तो फिर दोबारा वो कोर्ट में गया। उसके बाद तो वजीर आजम ने कह दिया, वजीर आजम ने आपने हकीम सईद कह गए, हाफिज सईद शायद कहना चाह रहे थे ना, सॉरी हाफिज सईद, चले तो वो उन्होंने कहा, तो अब हाथी के पाँव में सारे पाँव ना। देखिए 31 मई तक तो यही शख्स वजीर आजम है ना। हाँ, उसके बाद अगर वजीर आजम या वजारत दाखिला अपनी पोजीशन बदल ले तो कुछ नहीं कह सकता। सही। और एक बड़ी हैरान कुन बात है, मैंने चूंकि बहुत अरसा जो है वो वजारत खारजा से जारी हुई प्रेस रिलीजेस की जबान को समझने में गुजारा है। अभी भी ये लिखा हुआ है मार्च 28 से अप्रैल 3। राइट, सुनो ना। तो 28, 29, 30, 31, ऑलमोस्ट 1 और 2 6 दिन, ऑलमोस्ट 5 नहीं बल्कि 6 दिन। ठीक है जी। अब यहाँ पर बताया गया कि वो किन किन से मिली हैं। मुख्तसर अल्फाज में ये कहा कि वो आई थी कि हमारी कमिटमेंट टू एलिमिनेट ऑल टेररिस्ट, हर नौइयत के दहशतगर्द वगैरह वगैरह, पाकिस्तान का किरदार। लेकिन इसकी आखिरी लाइन जो है वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। ये यूएस एम्बेसी की प्रेस रिलीज जो उन्होंने उनके दौरे के इख्तिताम पर फिर ये कहती है, इन कराची कराची में एम्बेसडर वेल्स highlighted our ongoing efforts to build strong economic and people-to-people ties with the people of Karachi and Sindh. Why only Karachi and Sindh? अमेरिका की वजीर खारजा कराची या सिंध से क्या, वो पीपल ऑफ पाकिस्तान कहेंगी ना, वो कहेंगे ना कि सूबे में जो कोई तरक्याती काम हो रहे हैं कुछ इस तरह की हाँ, या फिर पीपल टू पीपल कहेंगी तो कहेंगे विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल टू पीपल। कराची एंड सिंध कहां से आ गया? देखिए, ongoing efforts to build strong economic and people-to-people ties with the people of Karachi and Sindh. तो बाकी इसका मतलब है with the people of Lahore. हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ, तो why कराची? With the people of Peshawar नहीं? No. Why कराची? With the people of Quetta नहीं? No. Why not? अब इंटरप्रेट करें ना, मुझे बताएं क्यों है ये? मैंने बस इंटरप्रेट क्या करना, हैरत हुआ यानी हैरान हो गया मैंने कहा यार ये मैंने 3 मरतबा मैंने एलिस वेल्स को कराची की महबूबियों के बारे में कहां से इतना ख्याल आ गया? इनको क्या हुआ कि सिंध के लोगों को इतनी मोहब्बत? भाई मैं दोबारा कह रहा हूं। अच्छा, हैजर्ड अ गैस ना बताए ना, मतलब क्या कुछ तो इसकी क्या कह दिया, मेरा ख्याल है डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज डिस्कस हो रही है। तो टाई आज मैंने लगाई नहीं हुई, लेकिन छोटा सा सफीर मेरे अंदर भी है। तो फिर कराची के लोग प्लीज बच के रहिएगा, पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि बीवी ये भी कहते थी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट विद लाहौर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान बोलते हैं ना, ये कराची कहां से आ गया? पीपल टू पीपल कांटेक्ट विद पीपल ऑफ कराची एंड पाकिस्तान कह देते। चले भाई, एक शहर के हवाले से एक मेट्रोपॉलिटन, तो और भी शहरों में नहीं गई है? इधर ही इस्लामाबाद के लोगों का, या तो वो कितना लंबा, सबसे लंबा चंक उनके दौरे का इधर का होगा, यहाँ के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं करना चाह रही वो। आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दूसरी जो बात है कि अमूमन जब अच्छे जमाने हुआ करते थे तो पाकिस्तान की वजारत खारजा भी ब्रीफ किया करती थी ज्यादातर ऑफ द रिकॉर्ड, और अमरीकी भी हत्तुल इम्कान कोशिश किया करते थे कि लोगों के डीप बैकग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। नहीं, मोहतरमा मिली हैं कुछ लोगों को, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, जो इनसे मिले हैं, उनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने कम से कम एक ग्रुप में गवादर के बारे में बड़े पॉइंटेड सवालात किए। ये मोहतरमा बार बार कहती रही कि सीपैक हमें कोई है जबरदस्त, मगर गवादर बताइए। नहीं अच्छा। सीपैक जबरदस्त, ओके, नहीं बट तो आएगा ना, सुन तो लो ना, मैं तो अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल तबसरा नहीं कर रहा, जैसे मैंने इसका भी मैंने कोई तबसरा नहीं किया है। कह रही हूँ बट नहीं कहा। अच्छा, बट नहीं कहा। वो ये बार बार कहती रही कि गवादर से ये बताइए कि कमर्शियल एक्टिविटी क्या हो रही है। अच्छा, राइट। आप इसकी भी यानी कि ताबीर करूं क्या, यानी इन शॉर्ट जो मैं समझ पाया सही है, उसमें ये था कि वो बार बार